عزیز دوستوں السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ پاکستان کے 3 صوبے جو کہ پورا پاکستان یہی صوبے چلاتے ہیں، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے خیبر پختونخوا، جس کو کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس بھی کہتے تھے۔ تو یہ 3 مقبوضہ علاقے ہیں جو پاکستان کی پنجابی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تینوں صوبوں کے حال انتہائی خراب ہیں، انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں، سوسائٹی اتنی برباد کر دی گئی ہے کیونکہ پنجاب سے مولویوں نے ان تینوں علاقوں میں جا کے جو بیڑا غرق کیا، جیسے کہ طارق جمیل کراچی آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کراچی میں تو خاص طور پہ آپ کو پورے پنجاب کے جو مولویوں نے جو پاکستان آرمی کے کہنے پہ گند بازی مچائی ہوئی ہے، تو وہ میری نظر میں تو یہ مسلمان ہی نہیں رہے پورے پاکستانی، کیونکہ جس قسم کا اسلام یہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ خود اسلام کی نفی ہے۔ اسلام کے کسی بھی مذہب میں یہ چیزیں تو مطلب اتنی نفرت، اتنی گھٹن، اتنی پابندیاں، اتنی چیزیں ملا نے آج کے اسلام میں وہ کر دی ہیں کہ جکڑ کر رکھ دیا ہے پوری قوموں کو۔ میں شروعات کروں گا پہلے سندھ کی طرف سے۔ دیکھیں، سندھ میں ہسٹوریکلی طور پہ سندھ ایک آزاد علاقہ رہا ہے۔ راجہ طاہر یہاں کے ایک مشہور اور بڑے زبردست راجہ ہوتے تھے، جن کی اگر آپ نیوٹرل ہسٹورینز کو پڑھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ راجہ طاہر کے دور میں سندھ کتنا خوشحال تھا کہ پوری دنیا سے تجارت کے لیے لوگ آتے تھے ادھر۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک کی جو آل، ان کی جو فیملی ہے، ان کے اوپر جب وقت آیا اور بنو امیہ نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تو وہ یہیں سندھ آ کے انہوں نے پناہ مانگی تھی۔ اور یہ ایک بہادر راجہ تھا، راجہ طاہر، جس نے اپنی زبان جو کہ اس نے دی تھی آل رسول کو کہ تمہاری حفاظت میرا دھرم ہے، میرا فرض ہے، وہ اس نے پورا کیا۔ اور اس کے لیے اس نے اپنا راج، اپنا ملک، اپنا سب تباہ کر دیا، لیکن اپنے وچن سے وہ پھرا نہیں۔ یہ ہے وہ سندھ دھرتی۔ اس سندھ کا جو حال کیا ہے پنجاب نے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ آج سندھ میں رہنے والے جو مین جو 2 پارٹیاں ہیں، مہاجر اور سندھی، وہ اب تنگ آ گئے اس پنجاب کی جو سندھ گردی ہے، جو سندھ پہ انہوں نے جو گند مچائی ہوئی ہے، اس سے تنگ آ گئے ہیں۔ سندھی جو عام سندھی ہے نا، اس کو ابھی مزید تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے جاگیرداروں کے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے، جبکہ یہ تاریخ رہی ہے کہ 72 سال سے سندھ پہ ان سندھی جاگیرداروں کا ہی رول رہا ہے۔ صرف چیف منسٹر آف سندھ نہیں، ہوم منسٹر، فائننس منسٹر، ٹرانسپورٹ منسٹر، آپ یو نیم دا منسٹری، ساری ایجوکیشن منسٹر، ساری امپورٹنٹ منسٹریز رائٹ فرام 1947 اب تک سندھی وڈیروں کے پاس ہے۔ اور ان کی پالیسیز کا ہی نتیجہ ہے نا۔ عام سندھی کو صرف ایک سمپل سا نقطہ سمجھنا ہوگا کہ 72 سال سے جو سندھی جاگیردار رول کر رہے ہیں سندھ کے اوپر، اور برابر پنجاب کو شیئر دے رہے ہیں ان کی لوٹ مار میں، اور پنجاب کی آشیرواد سے، پنجابی فوجیوں کے آشیرواد سے سندھ پہ رول کرتے رہے ہیں۔ سندھیوں کو سمجھنا ہوگا کہ غلطی تو ہے نا ان سندھی جاگیرداروں کی بھی۔ بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ریلی نکلی ہے، ایسی نکلتی رہتی ہیں، یہ اکلوتی نہیں ہے۔ آزادی سائیں جی ایم سید، جنہوں نے پاکستان ڈیمانڈ کیا تھا، پہلی اسمبلی سندھ اسمبلی تھی پورے ہندوستان کی جس نے پاکستان بل پہ ایڈوپٹ کیا تھا اپنی اسمبلی سے، سائیں جی ایم سید نے کروایا تھا۔ لمبی ہسٹری ہے اس میں بھی، نان مسلم جو ممبرز آف اسمبلی تھے ان کا رول بڑا سگنیفیکنٹ رہا ہے۔ خیر، سندھو دیش، سائیں جی ایم سید نے جب پاکستان کے بننے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی بھیانک غلطی ہے یہ، تو پنجابی جاگیرداروں کی اور پنجابی فوجیوں کی ایک انگریزوں کی ڈائریکشن میں بننے والے ڈرامے کا پورا سیناریو ہے،
تو شاہین جی ایم سید نے آزاد سندھو دیش کی ڈیمانڈ کی، تو ہم ہلکے پھلکے تو سنتے تھے، اب پاکستان میں ریگولرلی سندھو دیش کے حوالے سے ریلیاں نکلتی ہیں اور آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ سندھ میں ریزنمنٹ بہت ہے، اندرون سندھ، اگر آپ سندھ کو، کیونکہ بھٹو نے سندھ کو ڈیوائڈ کیا ہے رورل اور اربن میں، کیونکہ اربن میں مہاجر میجورٹی میں رہتا ہے اور رورل میں سندھی میجورٹی میں رہتا ہے، حالانکہ دونوں جگہوں پہ دوسری بھی ہیں، جیسے مہاجروں اربن ایریاز میں سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پختون بھی ہیں، لیکن بہرحال مہاجر میجورٹی میں۔ اسی طرح رورل ایریا میں بھی سارے ہیں، پختون ہیں، مہاجر ہیں، لیکن سندھی میجورٹی میں۔ تو اگر آپ رورل سندھ کا معائنہ کریں گے تو وہاں پہ انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں، سوسائٹی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، جاگیرداروں کا ٹوٹل رول چلتا ہے، جاگیرداروں کی عدالتیں ہیں، جاگیرداروں کی پرائیویٹ جیلز ہیں، اور جاگیرداروں کا پورا نظام چلتا ہے سندھ میں۔ اربن ایریاز میں آئیں تو فوج کے ٹٹوؤں کا نظام چلتا ہے، انکلوڈنگ ایم کیو ایم۔ آپ میرا کراچی کا پروگرام دیکھ لیجئے گا تو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں لیڈرشپ تو لنڈن میں بیٹھی تھی نا، باقی تو وقت نے ثابت کیا کہ جتنے کراچی میں ایم کیو ایم والے ہیں آج فوج کی گود میں بیٹھے ہیں نا، اور سب بنگلوں میں رہ رہے ہیں، عیاشیوں سے رہ رہے ہیں، ان کے بچے یورپ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بسوں میں دھکے کھاتے تھے کراچی میں۔ تم مہاجروں کی لیڈرشپ بھی فوج کی آشیرواد سے ہی کراچی اور اربن سندھ کا بیڑا غرق کرتی رہی، اور ساتھ میں سندھی جاگیردار تو ماشاءاللہ تھے ہی شامل۔ تو سندھ کا کیس بڑا خراب ہے، عام سندھ کا رہنے والا، چاہے وہ مہاجر ہے کہ سندھی ہے، وہ اس وقت لیڈرشپ کی تلاش میں، کیونکہ اس کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ مہاجروں کی لیڈرشپ، الطاف حسین لنڈن میں پابندیاں، برٹش کیسز، پھر پاکستان میں پابندیاں وغیرہ وغیرہ۔ مہاجروں کی لیڈرشپ کا تو وہ حال کیا ہے کہ کراچی میں ٹکے ٹکے پہ پان کی دکانیں اتنی نہیں جتنی ایم کیو ایم کی برانچز کھول دی گئی ہیں، اتنی ایم کیو ایم کے گروپس بن گئے ہیں۔ مہاجروں کے تو آپ کو 575 لیڈر کراچی کی ہر گلی میں مل جائیں گے۔ یہی حال سندھیوں کا ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی کرپٹ پارٹی کے حوالے سندھ کیا ہوا ہے، جو 71 سے پاکستان پہ رول کر رہے ہیں، خاص طور پہ سندھ پہ، سوائے دو چار مشرف کے پیریڈ اور ضیاء الحق کے پیریڈ میں بھی ان کے سندھی وڈیرے ہی ہوتے تھے حکومت میں، یاد رکھیے گا۔ مشرف کے دور میں جو سندھی پرائم منسٹر تھا، غوث علی شاہ، اختر جی قاضی، یہ سب مشرف ضیاء الحق کے دور کے سندھی چیف منسٹر ہوتے تھے۔ مشرف کے دور میں بھی ارباب غلام اور مہر اور یہ سب اس کے تھے، سندھیوں کے ہی وڈیرے چیف منسٹر ہوتے تھے۔ تو سندھ از لکنگ فار اے لیڈرشپ، ادروائز سندھ کا کیس تیار ہے، اور پنجاب اس کو اب مزید برداشت نہیں کر سکا اگر صحیح معنوں میں لیڈرشپ آ گئی تو۔ آگے چلتے ہیں کے پی کے کا بھی بڑا ایک عجیب سا کیس ہے، کیونکہ کے پی کے جو لوگ ہیں پختون جو سفرنگ ہیں، خاص طور پہ کے پی کے میں دیکھیں، ایک تو ہے نارتھ افغانستان سے کلوزنس، جتنا بھی آپ جائیں گے نا وہ ریجن میں زیادہ ریزنمنٹ ہے، کیونکہ آرمی نے وہاں پہ بڑی اندھیر مچائی ہوئی ہے۔ فاٹا، ایکس فاٹا ریجن جس کو کہتے ہیں، جہاں نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سوات اور یہ سب جو علاقے ہیں افغانستان کے بارڈرنگ سے لے کے پاکستان کے اندر آتے تک، آپ پشاور تک آ جائیں تو آپ کو وہ پورے ایریا میں ریزنمنٹ ملے گا، اس لیے کہ پختون نیشنلزم اب ان کو باچا خان کے بعد اب جا کے یہ واپس پختون نیشنلزم ابھر کے آیا ہے، جب آرٹیفیشل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی شکل میں پختونوں کی لائی گئی، کیونکہ آفٹر آل پختونوں کی لیڈرشپ اے این پی کے پاس ہوتی تھی، اور جس طرح پورے پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کو لایا گیا، اسی طرح 6 سال سے ان کو لا کے ادھر 7 سال سے بٹھایا ہوا ہے پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ٹکے کا کام نہیں ہو رہا، اور کے پی کے کا حال خراب ہے۔ تو اب پختون نیشنلزم بھی اوپر کے آئے ہیں، جب یہ دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 50 سال سے افغان وار کے شروع ہوتے ہی پختونوں کے ساتھ تو وہ ڈرامے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ دیکھیں، ان کو مجاہد بنا کے بھیجا گیا، پورے افغانستان کا ستیہ ناش، پورے پاکستان کا ستیہ ناش، رشیا کو روکنے کے لیے، جو کہ ٹوٹلی بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ کولڈ وار کا حصہ تھا، اور پرائی جنگ میں افغانستان اور پاکستان کا پنجابی آرمی نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ طالبان ان کو مجاہد بنایا، پھر
दूसरा ग्रुप तालिबान बना कर आपस में इनको लड़वाया, दोनों को पठान पठान से लड़ रहा था 80s, लेट 80s में, 90s में सिविल वार में डाल दिया। यहाँ का पाकिस्तान का पठान बैठ के मुंह देख रहा था, पाक फौज की गुलामी कर रहा था। टेररिस्ट भी ये, मरने वाले भी ये, विक्टिम भी ये। 2001 9/11 आता है, इसके बाद कहानी बदल जाती है। पख्तून को पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट का ब्रांड बना के पेश किया गया। वहाँ पे फिर पख्तून लीडरशिप, पख्तून लोगों में अवेयरनेस आई कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जाया जा रहा है। फिर जो रोज़ की बुनियाद पर एट्रोसिटीज़ होती थी, जो मारा गया तालिबान के नाम पे डाल दिया, टेररिस्ट बना दिया। कराची में वो लड़का महसूद, ताल्लुक ही नहीं तालिबान में, तालिबान के नाम पे, टेररिस्ट के नाम पे। कभी अमेरिका में ग्वांतानामो बे भर दिया, जिसको देखो पकड़ के पख्तून परेशान हो गया। पख्तून की फिर लीडरशिप आई, क्योंकि लीडरशिप आती है ना, जब लीडरशिप किसी इशू को मिल जाए ना तो वो इशू फिर चल पड़ता है। मंजूर पश्तीन जैसी लीडरशिप मिली और पख्तूनों के ऊपर जो मजालिम, आप देखें पाकिस्तान फौज रोज़ की बुनियाद पे जगह जगह चौकियाँ हैं, हर थोड़े 10 किलोमीटर के बाद आपको एक चौकी मिलेगी। चौकी पे औरतों को, मर्दों को, पख्तूनों को इतना बेइज्जत और जलील किया जाता है, लूट मार की जाती है, इनके साथ बदतमीजियाँ की जाती हैं, इनके घरों पे छापे मारे जाते हैं। पख्तून के अंदर भी अब गुस्सा उबल रहा है। फिर इनके जो ब्रदर्स हैं अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक ही कौम है ना, तो इन लोगों ने देखा कि इस पूरे पिछले 50 साल में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तूनों का बिल्कुल सही मानों में बेड़ा गर्क किया है इस पंजाबी आर्मी ने। तो अब रिपेयरिंग किस तरह करें, तो फिर मिल के इन लोगों ने कुछ पॉलिसी चलाई है और पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला किया जा रहा है। बलूचिस्तान के मुकाबले में पख्तून एरियाज़ में अभी आर्म्ड रेजिस्टेंस शुरू नहीं हुई, लेकिन जिस दिन शुरू हो गई उस दिन पंजाबी की तो मैया मर जाएगी। इसकी वजह यह है कि पख्तून, आपको पता है, हथियार उसका जेवर है, बंदूक उसका जेवर है। बंदूक और फिर लड़ना पख्तून को कोई नहीं सिखाएगा, पख्तून निपट लेगा जिस दिन इनकी खोपड़ी घूम गई। अभी तक इन्होंने वायोलेंस का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। दूसरा ये इंडिया के उससे थोड़ा बचते हैं। इनकी आप लीडरशिप के बयानात देखें तो अक्सर ये कश्मीर पे और वो थोड़ा बहुत बैलेंस करने के लिए इंडिया के बारे में भी वो कर देते हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़ा डिस्टेंस रखते हैं इंडिया से कि कहीं इनके ऊपर वो ना आ जाए। तो मेरी कई पख्तून लीडर से बात हुई, क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह भी देने के लिए ऐसा तैयार नहीं होते। ख़ासतौर पे मेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि मैं इंडियन बैक्ड हूँ या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करता हूँ, तो मुझे भी इंटरव्यू नहीं देते। तो मुझे उन्होंने वजह यही बताई कि हमारी लीडरशिप पाकिस्तान में जो है, मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ वगैरह, अली वज़ीर वगैरह ने ये फ़ैसला किया है कि हम इंडिया से मदद नहीं लेंगे, इसलिए कि फिर पाकिस्तान में हमारी जो जायज़ मूवमेंट है उसको गलत रंग दिया जाएगा और हम अपनी अभी अफ़गानिस्तान की मदद से अपनी जंग एक तरह से लड़ रहे हैं। और अभी हम किसी आर्म्ड स्ट्रगल या हम पाकिस्तान से अलग होने की अभी तक बात हमने नहीं की है, जैसे सिंधु देश और बलूचिस्तान वाले अलग होने की बात करते हैं। तो पख्तूनों का केस डिफरेंट है, लेकिन सबसे मजलूम बलूचिस्तान और पख्तून लोग हैं जिनके ऊपर बहुत मजालिम हो रहे हैं। रोज़ की बुनियाद पे इनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, इनको चौकियां बना के, फिर इनके कारोबार, इनके धंधे, इनके ख़ास तौर पे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, जैसे अभी आपने देखा था चमन बॉर्डर एरिया पे क्या हालात हुए हैं। जब देखो बॉर्डर बंद कर देते हैं। अब जो इंडिया के माइग्रेंट कल्चर आप देखते हैं ना कि किस तरह काम के लिए एक इलाके से दूसरे इलाके के लोग जाते हैं, तो ये अफ़गानिस्तान के भी बॉर्डर के एक जलालाबाद से इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। इस तरह इनका आपस में पख्तून बड़ा काम काज के हवाले से वो अक्सर जब देखो बॉर्डर बंद कर देते हैं। तो पख्तूनों का हाल भी बहुत ख़राब है इस पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं मैन वॉलेटाइल जो वोल्केनो पाकिस्तान का है, बलूचिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान अब एक फैसला कुन मोड़ पे आ गया है। हयात बलोच का मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। सनाउल्लाह बलोच से सुने, ये सेनेटर हैं सनाउल्लाह बलोच। मैं आपको कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा जुर्म है जो लोग कहते हैं कि ऐसे वाकयात पे बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो कातिल है वो एक जुनूनी था और वो पकड़ा गया, बस इस पे आप खामोश हो जाएं। ये कैसी जुनूनियत है जो चमन के सरहद से शुरू होकर तुर्बत के सरहद तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। ये कैसी बत्ताखोरी है जो 1550 चेक पोस्टों पर मुश्तमिल है, कहीं पे खत्म होने का नाम नहीं लेता। आपने इस खूबसूरत हमारे आबा अजदाद के बलोचिस्तान को बत्तिस्तान बना दिया है। इतने चेक पोस्ट
मैं कहता हूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, चाइना जिसकी सबसे बड़ी दुनिया में जोग्राफिया है, इतने ज्यादा चेक पोस्ट नहीं है, पत्तेस्तान बन गया है। शर्म आता है कि जब हम नाम लेते हैं बलोचिस्तान का, क्या आप मुझे बताएं किसी हुक्मरान के लिए, किसी हुकूमत के लिए यह अच्छी बात है कि बलोचिस्तान के नौजवान की यह तस्वीरें लाहौर में भी गर्दिश कर रही हैं, कराची प्रेस क्लब के सामने भी हैं, यूरोप में भी उठाई जा रही हैं, जर्मनी में भी उठाई जा रही हैं, और तो अब छोड़ें ईरान के उलमा ने भी इस पे बयानात दे दिए हैं। वजूद बलोचिस्तान को उसका हक नहीं मिलता। मैं तो एक दफा गया, एक वालदा, उसके बच्चा गुम गया था, तो मेरे पास आया, मैंने कहा मां बलोचिस्तान मुश्किल जगह है, बलोचिस्तान की बड़ी अहमियत है, यहां दुश्मन कुव्वतें हैं, लिहाजा कुछ मुश्किल हालात है, सब्र करें, आपका बच्चा वापस आएगा। कहता है बेटा मैं दुआ करता हूं कि बलोचिस्तान के समंदर खुश्क हो जाएं, बलोचिस्तान का सोना और चांदी जो जमीन में 200,000 किलोमीटर और मदफून हो जाए, बलोचिस्तान की सारी सरहदें बंद हो जाए, अगर बलोचिस्तान का जोग्राफिया, बलोचिस्तान का पानी, बलोचिस्तान का सोना, बलोचिस्तान का चांदी, बलोचिस्तान के पहाड़, बलोचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत हमारे बच्चों को निगल रहा है, तो मैं दुआ करता हूं कि ये सारी चीजें बलोचिस्तान से खत्म हो जाएं। आप यही चाहते हैं कि हमारी माएं अब ये दुआएं करना शुरू कर दें कि बलोचिस्तान में कुछ भी ना रहे, ताकि किसी को बलोचिस्तान की जरूरत ही ना रहे। अगर आपने बलोचिस्तान को रखना है, ये काफ़ी सालों से मुशर्रफ के दौर से ये सनाउल्लाह बलोच हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। कई बार मेरी उनसे मुलाकात भी रही है, जिनेवा में, बेल्जियम में भी हमारी काफ़ी बैठक रही है। बड़ा अच्छा बोलते हैं, दर्द रखते हैं अपनी कौम का। और आपने देखा हयात बलोच एक केस नहीं है ये, इससे पहले आपको दूसरा भी, मैंने पिछले कुछ महीनों पहले एक और लड़का जिसने सवाल किया था एक प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग का, वो भी लड़का था। ये हयात बलोच के घर की, जब वो मरने के बाद इसका कमरा देखा गया, उसके ख्वाब थे CSS एग्ज़ाम देना चाह रहा था, जैसे आपके यहाँ CSI होता है इंडिया में, और वो सरकारी ऑफिसर बनना चाह रहा था। वो पाकिस्तानी बैग था, पाकिस्तानी मेंटलिटी रखता था। इसके घर पे जब इसके मरने के बाद तलाशी ली गई कि देखें इसके पास से कोई सेपरेशन का मटेरियल निकलता है, कोई अलग चीज़ को गद्दारी के हवाले से, तो हैरान रह गए कि वो प्रो पाकिस्तान था और वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता था और ये ख्वाब देखता था। तो ये हयात मोहम्मद बलोच की दर्दनाक स्टोरी है। ये एक घर की कहानी नहीं है। बलोचिस्तान में हज़ारों लोग गायब हैं। जिसके घर का एक आदमी गायब हो, उसको पता होता है कि उसके साथ क्या बीत रही है। जब किसी बच्चे को पता है कि उसका बाप नहीं है सर पे, जब किसी बच्चे को, किसी बीवी को पता है कि उसकी शोहर गायब है, एक आदमी मर जाए ना तो आदमी को सुकून आ जाता है कुछ अरसे बाद कि हाँ चलो मर गया है। यहाँ एक आस होती है, और कईयों का तो पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि अक्सर कई सालों बाद, जैसे अभी मिली थी एक गुमनाम कब्र, मुश्तरका कब्र होती है जो मास ग्रेव्स, उसमें दर्जनों लाशें मिली हैं, हड्डियाँ। अब किसका कैसे पता चलेगा? तो बलूचिस्तान का हाल तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप बलूचिस्तान का केस मैं एक बलोच से सुन लें आप। पहले तो मैं आज इस ऐवान में, जिसके कायद ऐवान भी रहे हैं नवाब शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब, मैं उनको, उनकी जुरत को और उनकी शहादत को इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे सलाम पेश करता हूँ। और इस ताज़ियती करारदाद के हवाले से, जनाब स्पीकर, परसों भी यहाँ पे इसी तरह के एक वाक़े पे बहस हो रही थी, हयात बलोच के कत्ल पे। जनाब वाला, उस वक़्त भी हम इस असम्बली के मेंबर थे जब नवाब साहब को शहीद किया गया। जब डेरा बुगटी के हालात ख़राब होना शुरू हुए, उस वक़्त एक 4 जमायती इत्तेहाद यहाँ पे बना। उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें, एक सियासी बहस व मुबाहिसा शुरू हुआ। जनाब वाला, वो दस्तावेज़ सना बलोच के सामने पड़ी है। एक वो चार्टर ऑफ डिमांड था हमारा, जो एक सियासी, आज भी जिस तरह का एक डिमांड सरदार अख्तर मेंगल साहब नेशनल असम्बली में 6 नुकात के नाम से लेकर गए, उस वक़्त तक उस 4 जमायती इत्तेहाद के प्लेटफार्म से या बलूचिस्तान पे किसी ने भी ये बात नहीं की कि बंदूक उठा के पहाड़ों पे चलें। जनाब वाला, उस वक़्त भी
यही ज़ेर बहस था कि बलूचिस्तान का मामला सियासी है, सियासी डायलॉग, पॉलिटिकल प्रोसीजर के तहत ही इसको हम हल करेंगे। उस वक्त भी इश्यूज बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के थे, उस वक्त भी इश्यूज बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल के थे, उस वक्त भी इशू सेंधक और बलूचिस्तान से निकलने वाली सुई के मकाम से गैस के थे। लेकिन जनाब वाला, जैसे कल मैंने कहा कि अशद जरूरत थी, आज भी है, उस माइंडसेट को बदलने की। उस वक्त भी जिनके साथ डायलॉग हो रहा था, उन्होंने उस वक्त भी ये फैसला किया कि बंदूक के जोर पे चीजों को सेटल किया जाए। हालांकि जिस कमेटी की अभी सना बलोच ने निशानदेही की, उसकी रिकमेंडेशंस अब भी इस पीले रंग के एनवलप में सना के सामने पड़े हुए हैं। इन तमाम पे, इन प्रिंसिपल वो पार्लिमानी कमेटी एग्री हो चुकी थी। मैं उससे एक कदम और आगे जाऊंगा। जब मुशाहिद हुसैन वाले और चौधरी शुजात वाले, सना भी उस कमेटी में था, रऊफ मेंगल भी था, गफूर हैदरी साहब थे शायद, सना साहब, मौलाना शिरानी साहब, ये डेरा बुगटी आए, नवाब साहब से मिले। नवाब साहब से मिलने के बाद इस्लामाबाद गए। तय ये हुआ था कि नवाब साहब इस्लामाबाद जाएंगे, बाकी चीजों को वहां पे बैठ के फाइनल किया जाएगा। जनाब वाला, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि फिर इस्लामाबाद से एक स्पेशल फ्लाइट सुई आया। नवाब साहब अपने लोगों के साथ सुई से डेरा बुगटी गए, डेरा बुगटी से सुई गए, अपने घर में बैठे थे। वो जहाज आया, काफी देर तक नवाब साहब को कहा गया कि मौसम खराब है, जहाज उड़ नहीं सकता। फिर नवाब साहब को उस खराब मौसम में सुई के बुगटी हाउस में छोड़ के वो जहाज खाली यहां से उड़ा और इस्लामाबाद गया। उसके अगले दिन नवाब साहब डेरा बुगटी में जब अपने बैठक में बैठे थे डेरा बुगटी में, तो उस वक्त किन के कहने पे, वो कौन सा माइंडसेट था कि जिसने, मैंने परसों भी इसका जिक्र किया था कि नवाब साहब के घर पे मार्टर गोलों की बारिश की, जिसमें नवाब साहब के साथी शहीद हुए, जख्मी हुए। हिंदू बिरादरी के हमारे 17 लोग, जनाब वाला 17 लोगों की हलाकत हुई वहां पे, वो लुकमा अजल बने। उसके बाद जनाब वाला बलूचिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ी गई जो आज दिन तक वो जारी है, जो अभी तक हयात जैसे हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की लाशें गिराती जा रही है, जिसने आज दिन तक बलूचिस्तानों की माओं और की गोदें उजाड़ी हैं, जो आज दिन तक हर गली मोहल्ले कूचे और हर घर से जनाजे उठाते जा रहे हैं। आज दिन तक उन हजारों लापता अफराद की मां और बहनियों की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही। अब आता हूं जनाब स्पीकर कि हमने क्या खोया क्या पाया इस तवील जंग से जो 2005 से शुरू हुआ, और आज जो इस फ्लोर पे हम खड़े हैं आज दिन तक जारी है। जनाब वाला, ग्वाराम साहब बैठे हैं, नवाब साहब के पोते हैं, ये गवाह होंगे, इनकी फैमिली के साथ हमारे फाद बुगटी हो या शहरियार हो, उनके साथ बचपन की हमारी रफाकत। जब ये मामलात नहीं थे, सरियाब रोड वाले वाकये में जब नवाब साहब का नवासा शहीद हुआ था, उस पे हम फातिहा के लिए गए,
जिस ने भी उस दौरान डेरा बुगटी का विजिट किया होगा या जो भी डेरा बुगटी गया होगा वो इस बात की गवाही देगा कि जब तक नवाब साहब जिंदा थे ये लेडी से रास्ता निकलता था डेरा बुगटी का, यहां से डेरा बुगटी तक किसी की ये मजाल नहीं होती थी कि वो किसी की तरफ आंख उठाकर देखे। मैं और कुछ दोस्त हमारे एक सुजुकी आल्टो में हम यहां से फातिहा पढ़ने गए, खाली हाथ डेरा बुगटी तक हम इंतहाई पुरसुकून माहौल में बिला खौफ व खतर हम गए। हमने फातिहा पढ़ा, नवाब साहब के साथ खाना खाया, उसके बाद वापस आए। अब जनाब वाला यहाँ पे तोहमत हमेशा लगती है कि जी सरदार नवाब ये बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं, इन्होंने बलूचिस्तान के हालात खराब किए, हम बंदूक उठा के बलूचिस्तान के हालात ठीक करने के लिए आए। जनाब वाला 2006 में नवाब साहब की शहादत होती है। 1952 में सुई के मकाम से गैस दरियाफ्त होता है, वहां पे पीपीएल की इंस्टॉलेशंस लगती है, वहां से पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई शुरू होता है। 1952 से 2006 तक आप रिकॉर्ड निकाल कर देख ले कि सुई के किस इंस्टॉलेशन को कभी कोई एक पैसे का नुकसान पहुंचा। क्या कभी किसी चरवाहे ने 1952 से लेकर 2006 तक सुई की इस पाइपलाइनों पे या इस इंस्टॉलेशन पे कभी अपना वो चड़ी जिससे वो अपने भेड़ बकरियों को आंकता है, कभी उसने अपना चड़ी भी जोर से मारा? अब आते हैं जनाब वाला 2006 से लेके 2020 तक, इन 14 सालों में जनाब वाला सिक्योरिटी की मद में सालाना कितने अरब रुपए हम सिक्योरिटी फोर्सेस को पे कर रहे हैं? 1952 से 2006 तक हमने कितना पैसा पे किया? जितना पैसा हम 1952 से 2006 तक इन इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी की मद में खर्चा किया, सिर्फ हम एक साल में उससे 4 गुना ज्यादा हम सिक्योरिटी फोर्सेस को गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पे कर रहा है। तो जनाब वाला अब मुझे यह बताया जाए कि नवाब अकबर खान को तो आपने शहीद कर दिया कि सरदार तरक्की मुखालिफ है, बहाना तो यह बनाया आपने। अब आते हैं 2006 से 2020 तक। 2006 से 2020 तक इन 14 सालों में डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट पे कंट्रोल किसका रहा? वो तो तरक्की मुखालिफ नहीं थे। जो तरक्की मुखालिफ था उसको तो आपने शहीद कर दिया, उसकी कफन पे भी आपने ताला लगा दिया, उसको नमाज जनाजा पढ़ने की भी आपने इजाजत नहीं दी। अब इन 14 सालों में आपने क्या किया डेरा बुगटी के लिए? क्या आपने सुई प्लांट के साथ उससे मुत्तसिल बुगटी कॉलोनी को गैस दिया इन 14 सालों में? क्या आपने सुई शहर जो उस प्लांट से मुस्तसिल है उसके प्लांट के चारों तरफ की आबादी है, क्या आपने उनको पीने का साफ पानी दिया? क्या आपने एक अच्छा सा स्कूल इन 14 सालों में सुई में बनाया? मैं डेरा बुगटी की तरफ नहीं आ रहा हूं, वो वहां से 50-60 किलोमीटर दूर है। मैं उस सुई प्लांट के इर्द गिर्द की बात कर रहा हूं। क्या उधर आपने कोई अच्छा स्कूल उन बच्चों के लिए बनाया? क्या कोई अच्छा कॉलेज आपने बनाया? क्या डेरा बुगटी के कोई 50 नौजवानों को आपने इन 14 सालों में मुलाजमतें दी? क्या डेरा बुगटी में कोई अच्छा अस्पताल आपने बनाया? कोई अच्छा रोड बनाया? क्या उनको आपने बिजली दी? क्या उनको आपने गैस दिया? अब आपने इन 14 सालों में क्या दिया? जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं उस पर आता हूं। पहले डेरा बुगटी से लोग निकलते थे, 5 घंटे में कोयटा पहुंचते थे इस लेडी वाले रास्ते से। आपने वो रास्ता उन पे बंद कर दिया। अब डेरा बुगटी का गरीब जिसके मुंह से आपने निवाला छीना, जिसकी सरजमीन से आप गैस छीन रहे हो, अब वो पहले डेरा बुगटी से निकलता है कश्मोर, सुई, सुई से कश्मोर जाता है, कश्मोर से फिर सिंध के रास्ते से जेकमाबाद आता है, फिर जेकमाबाद से कोयटा आता है।
جو 5 گھنٹے کا سفر تھا اس کو آپ نے 12 گھنٹے ذلیل کر دیا سفر کرنے پہ. ڈیرہ بگٹی سے بیکڑ تحصیل یہ کوئی 1 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا, وہ بھی کچا روڈ تھا. میں خود اس روڈ پہ میں نے ٹریول کیا ہے, مالم تک میں گیا ہوں. اس پہ اس روڈ پہ آپ نے فورسز بٹھا کے اس روڈ کو آپ نے لائن آرڈر کے نام پہ بند کر دیا تاکہ ڈیرہ بگٹی کے ساتھ ان تحصیلوں کا رابطہ نہ ہو سکے. اب جناب والا اگر بیکڑ سے کوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آنا چاہے تو وہ پہلے بیکڑ سے جائے گا ٹورز رکنی, رکنی سے پھر وہ جائے گا ڈی جی خان, ڈی جی خان سے پھر وہ آئے گا کشمور, کشمور سے پھر سوئی, پھر سوئی سے ڈیرہ بگٹی آئے گا ڈی سی سے اپنا کاغذ دستخط کروانے, اور کاغذ دستخط کرانے کے بعد پھر اسی روٹ پہ واپس جائے گا. اگر وہ کوئٹہ آنا چاہے تو اس کو بھی پہلے رکنی, رکنی سے پھر لورلائی والے راستے سے پھر یہاں آنا پڑے گا. تو یہ آپ نے ترقی مخالف کو راستے سے ہٹا کے, یہ ہے آپ کی ترقی. آج اربوں روپے جناب والا 8-10 ارب روپے سے زیادہ سالانہ ہم سوئی اور ڈیرہ بگٹی کی سیکورٹی کی مد میں بلوچستان خرچ کر رہا ہے. اس کے باوجود ہم اپنے یہ 2 راستے نہیں کھول سکے. پھر تو میں اس ایوان میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اس ایک نواب اکبر خان کو کہ جس کے دور میں مرغی چرانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی, انسٹالیشن کو ہاتھ لگانا تو اپنی جگہ. نکالیں آپ ریکارڈ 1952 سے 2006 تک کی اور 2006 سے 2020 تک کی. تو جناب والا آج اس مائنڈ سیٹ کی میں بات کروں گا جو آج اس ایوان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. جناب والا اس نائب تحصیلدار جس نے حاجی ضابط پہ فائرنگ کی, کیا یہی سوچ اس وقت کیپٹن عماد کو بچانے کی نہیں تھی؟ کیا نواب اکبر خان بگٹی کے خلاف جو اتنی بڑی کارروائی کی گئی, کیا اس کا وجہ کیپٹن عماد نہیں تھا؟ کیا کیپٹن عماد کو تحفظ دینے کے لیے ڈیرہ بگٹی اور نواب صاحب کے قلعے پہ حملے نہیں کیے گئے؟ ایک آدمی کو جس نے ایک لیڈی ڈاکٹر جس کا تعلق بلوچستان سے بھی نہیں تھا, سندھ سے تھا, اس کے لیے نواب صاحب نے آواز کیا بلند کی؟ آپ نے اس ایک کو بچانے کے لیے یہ جنگ, حالانکہ جنگ کی بات نواب اکبر خان نے کبھی نہیں کی, نہ جنگ کی بات اس 4 جماعتی اتحاد نے کی. اس جماعتی اتحاد نے یا نواب اکبر خان بگٹی نے ہمیشہ بات کی بلوچستان کے وسائل کی, بلوچستان کی پسماندگی کی, بلوچستان کے حقوق کی. آپ نے اس ایک ایشو کو اٹھا کے پورے بلوچستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی. آج بھی میں اس حکومت کا رویہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک نائب تحصیلدار, اس کی چوری, اس کی بتہ خوری, اس کی رشوت خوری, اس کو بچانے کے لیے پورا ایوان ایک اس حاجی ضابط والے معاملے پہ وہ کبھی سی ایم آئی ٹی کی کمیٹی بنا کر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کس کی کمیٹی بنا کے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جناب والا آج بھی میں آفرین کہتا ہوں حاجی ضابط کو اور ان کی جماعت کو کہ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آج بھی اگر یہ کال دیں اس نائب تحصیلدار کے خلاف, پورے بلوچستان میں لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ آج بھی جمہوری انداز میں اس تحریک استحقاق لا کے اس پارلیمنٹ کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی جس کی ذمہ اس ایوان کے استحقاقات کو نمٹانا ہے, اس کے ذریعے انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی اس کے ذریعے انہوں نے تحریک استحقاق جمع کر کے آپ کی توسط سے, چیئر کی توسط سے اس کو استحقاق کمیٹی کے حوالے کیا. جناب والا اس مائنڈ سیٹ کو, اس روش کو تبدیل ہونا چاہیے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر کے چیزوں کو سنجیدگی کی بنیاد پہ لیا جائے, چیزوں کو ڈائلاگ کے ذریعے
सियासी बुनियादों पे इनका तज्जिया किया जाए, इनको परखा जाए और इन पे सियासी फैसले किए जाए, तो आज भी बलूचिस्तान के हालात फिर अपने पुरानी डगर पे आ जाएंगे। तो आखिर में एक दफा फिर मैं इस ताज़ियती करारदाद को इस ऐवान से मंजूर करने की सिफारिश करते हुए नवाब अकबर खान और उनके उन तमाम शहीद साथियों को खराज अकीदत पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बलोच केस आपने देखा, ये एक बलोच असेंबली में ये केस पेश कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। बलोच का तो पता नहीं खुद अपने बल पे ये यहाँ तक आ गया और अब एक फैसला कुन मरला है और इनको ज़रूरत है कि अब इनका हाथ पकड़ा जाए। और मेरी वापस दरख्वास्त है मोदी सरकार से, भारत से, कि खुदारा इंसानियत की खातिर थोड़ा बलूचिस्तान के लिए आवाज़ ही उठा दें। भारतीय मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा इसको एक कैंपेन के तौर पे चलाएं और बताएं दुनिया को, जिस तरह पाकिस्तान बलूच कश्मीर में कुछ नहीं है, फिर भी कश्मीर के हवाले से क्या क्या चीज़ें पैलेट गन्स चल रही हैं, तो ये हो रहा है, तो जेनोसाइड हो रहा है, तो औरतों की बेइज्जतियाँ हो रही हैं। ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैला रहा है, फेक न्यूज़ फैला रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे, एम्बेसडर्स लेवल पे, हर जगह ये चीज़ हो रही है। तो कम अज़ कम यहाँ तो एक इंसानियत का मसला है। मेरी रिक्वेस्ट है भारतीय मीडिया से कि बलूचिस्तान इशू को जगह दें अपने प्रोग्रामों में। ये एक इंसानियत का मसला है और आपके रीजन का मसला है। भारतीय सरकार, वेस्ट अमेरिका, यूरोप, मेरी रिक्वेस्ट है बजाय इसके कि आप बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, क्योंकि देखें बलोच नौजवान के पास क्या रास्ता है, हयात बलोच और ये जो दूसरे बलोच, आपको साजिद हुसैन स्वीडन में मार दिया इसको। स्वीडन का तो अपना हाल ख़राब है, स्वीडन तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ स्वीडन बन गया है। तो बलोच नौजवान के पास क्या चॉइस है? वो पढ़ लिख के पाकिस्तान में आगे बढ़ना चाहता है तो भी उसको मार दिया जाता है। तो वो फिर यही कहता है कि बंदूक उठाओ भाई, फिर अपने घर वालों की हिफाजत के लिए, अपने उसके लिए। तो वो बंदूक उठाने पे मजबूर है, तो आप उसको, अमेरिका और यूरोप उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे देते हैं। तो वो कहाँ जाएं? आप आ जाएं, कोई बलोच हथियार नहीं उठाएगा। आई गारंटी यू, अगर अमेरिका अपनी फ़ौज भेज दे और बलूचिस्तान का कंट्रोल ले लें, आप यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल दें बलूचिस्तान का, वो फैसला करें, वहाँ प्लेबिसाइड करें और वहाँ पे जो है उनका हक जायज़। और अगर प्लेबिसाइड में मेजॉरिटी ऑफ बलोच कहते हैं कि नहीं हमें आज़ादी नहीं चाहिए, तो ठीक है, फिर जो आज़ादी के मतवाले हैं उनको भी मैसेज चला जाएगा। लेकिन एटलीस्ट यूएन शुड इंटरवीन, इंटरनेशनल फोर्सेस यूएन के ज़रिए आएँ और इस बलोच मसले को हल कराएं। पाकिस्तान की करप्ट और जालिम फ़ौज यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी की दास्तान रकम कर रही है और कुछ नहीं कर रही। तो खुदारा इस कौम की मदद करें। और बलूचिस्तान का केस ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान में, देखें ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे बंदा गायब हो जाता है मिनटों में। ये एक मिनट नहीं लगाते पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना। इंडिया में तो वो इस्लामोफोबिया के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे ज़रा कुछ होता है तो वॉशिंगटन हिल जाता है पूरा। ये आ गया इंडिया में हिंदुत्व, आ गया इंडिया में हिंदू फोबिया, वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म ने ये कर दिया वो कर दिया। कोई छोटी मोटी चीज़ होती है जिसके पीछे भी आता वही है कि जी मुसलमानों ने शरारत की थी। जैसे कि बंगलोर का वाक़या आपके सामने ही है ना भाई। ये मतलब कोई रीज़न तो नहीं है एक शहर को आग लगाने का, किसी को हक नहीं है। यहाँ पे क्या, वो दरअसल एक मुसलमान, एक हिंदू ने इस्लाम के ब्लास्फेमी कर दी थी, इसलिए रीज़न पहले दे देते हैं। ये इंडिया के जो सर्डो जर्नल्स है ना, जर्नलिस्ट हैं ना, जो ख़ास तौर पे मैं बार बार इनके नाम लेता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये इस तरह चीज़ों को पेश करते हैं कि उसको मासूम बना के फिर वो ह्यूमन चैन और इस तरह के ड्रामे। तो ये जो बलूचिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में मिसिंग उसके हवाले से मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में तो जिसको देखो उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ इजाज़त ही नहीं है किसी को बोलने की। जर्नलिस्ट उठा लिए जाते हैं, आम आदमी उठा लिए जाते हैं। ऐसे ही वकीलों का एक प्रोग्राम हुआ था मुशर्रफ के दौर में, जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली थी, तो वकीलों ने बड़ा मूवमेंट चलाई थी। एक वकील हैं इशरत नसरीन, ये अक्सर आर्मी के ख़िलाफ़ अपनी तकरीर में जज्बात में आके बोल जाती थी।
जैसे कि इन्होंने यहाँ पे जैसे आप इनकी एक तकरीर मुकला वर्दी से लड़के, कर्नल से लड़के, जर्नल से लड़के, दुश्मन के दुश्मन, दुश्मन के दुश्मन, गासिब के दुश्मन, कातिल के दुश्मन, एतजाज की सूरत, अली कुर्द की सूरत, मोनीर की सूरत, हामिद की सूरत, हम चीर की सूरत, हम चीर की खातिर, हम चीर के साथी, जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला। फौजियों ने फिर इनको अगवा कर लिया। 4 दिन ये बेचारी शादीशुदा 6 बच्चों की माँ, 4 दिन आप खुद समझ सकते हैं कि ये घटिया और जलील कमीनी फौज जो कि घटिया पने के किसी भी लेवल पे गिर सकती है, उसने इस औरत के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। आप फ़र्क देख लें, इस औरत की हालत देख लें, इसके हवास नहीं है। ये बेचारी के साथ इन्होंने ये किया है तो आप खुद सोचें कि दूसरे, ये तो वकील है, आप सोचें एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। और वो आम आदमी अगर एक बलोच है, पख्तून है, महाजिर है, सिंधी है, तो उसके साथ क्या होता होगा। और अगर वो आम आदमी सिर्फ एक जायज़ सवाल ही पूछ ले कि आसिम बाजवा, तुम्हारे पास ये हराम का इतना पैसा कहाँ से आया, तो आप उठा के गायब कर दो। ये बेचारी की हाल देखें। कहाँ से आई आप? दीपालपुर। दीपालपुर। किसके साथ आई हैं? किस पे आई हैं आप? पता नहीं, हैं? पता भी नहीं है? हैं? 14 अगस्त को। 14 अगस्त को अगवा किया किसी ने अगवा किया। आप किस फैमिली से हैं? कौन? आपका नाम क्या है? शाद। इरशाद। यहाँ पे कब भयंगा आपको? आज कितने बंदे हैं? कौन है वो? 4। कौन है? कौन वो? पता नहीं। आपके जिस्म के साथ कुछ चीज और तो नहीं बंधी हुई? हाथ खोल दें आपके। बोल दी भाई, बोल दी। ऐसे कोई औरत नहीं है? औरत कोई तो औरत खड़ी है ना, कोई औरत है? औरत कोई है? औरत ले आओ, हाथ खोल। वो याद है औरत वकील हो? कोई यार। दे दे। मुंह साफ करो, मुंह साफ करो। अच्छा, आप परेशान नहीं हो। ये आपको 14 अगस्त को अगवा किया है? 14 की अगली सुबह मेरे ऑफिस से। आपका नाम क्या है? इरशाद। इरशाद। आप शादीशुदा हैं? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। दीपालपुर के रहने वाले आप? अच्छा। बेटियां कितनी यार हैं? खुले हवाला करो यार, खुले हो जाओ यार। डिप्टी जाना नहीं है। और 2 या फिर आप गड्डी को बुला लो, कोई नहीं कर यार, बड़ी देर से खड़ी है। अजीज दोस्तों, ये है मेरे मुल्क का हाल। आम पाकिस्तानी अगर वो पंजाबी नहीं है तो वो गुलामों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। कुदरती आफात ने तो जो किया सो किया, वो तो मैं क्या बताऊं आपको कि जो इंसान की जो इस वक्त कराची में और ख़ास तौर पे वो बाकी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वगैरह में जो इंसानों की जो ज़िंदगी के जो हालात हैं, ऐसे मुल्क से तो ना मुल्क अच्छा। ऐसी आज़ादी को हम आज़ादी नहीं कहते। हमें कहते हैं कि तुम्हें क्या पता आज़ादी की नेमत। यह है नेमत जहाँ चंद हरामखोर, जलील व कमीने फौजी और उनके जूते चाटने वाले मीर मोहम्मद अली खान जैसे लोग, कराची का ये एक है जो अमेरिका से भाग के आया था। अमेरिका से इसने लूट मार करके इतना बड़ा घपला किया है कि अमेरिका नहीं जा सकता वापस, गया ही नहीं कई साल से। ऐसे तो आपको कराची में भरे हुए मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में। सिर्फ बूट चाटने वाले जो फौजियों की दलाली करें, जो फौजियों के लिए अपने घर की औरतें तक पेश करें, उनके लिए ये आज़ादी है, बाकी ये आज़ादी नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान से ना पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का आप दिल नहीं करता भाई। कैसे करेगा जब पाकिस्तानी ही तकलीफ में? तो नहीं चाहिए ऐसा पाकिस्तान हमें। अब जो इनएविटेबल है ये हो जाए जितनी जल्दी वो बेहतर है।
عزیز دوستوں، آپ کے سپورٹ کے بغیر ہم یہ موومنٹ نہیں چلا پا رہے. آپ لوگ پلیز سپورٹ جاری رکھیں اپنا. میری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، میں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا، اور تھوڑا سپورٹ ہمیں جاری رکھیں تو ہم اپنا کام آگے بڑھا سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. Say your closing remark. Thank you very much. My name is Arif Ajakia and I belong to Karachi. As I earlier spoke on this topic in this conference, a very important event, I wonder if the election results of 1970 were accepted by all parties and Pakistan, both East and West Pakistan, would have a prime minister called Mr. Mujibur Rahman, I think Pakistan would have been a superpower today, an economic power today. If he would have been given his mandate, what he got his mandate, and if he would have been given chance to rule Pakistan, Pakistan could have gone so far. And the two biggest epidemics or that we Pakistanis are facing are persecution by Pakistan army, the oppressive army, and the corrupt feudal lords. If Mr. Mujibur Rahman would have been Prime Minister of Pakistan, Pakistan would have got rid of these two epidemics. But the army and the feudal lords did not want that Pakistan progresses. And that's why Mr. Mujibur Rahman was put in the jail, and treason case was issued against the man who had mandate of majority of Pakistanis. 55% Pakistanis had voted for him. But that's what happened. And Bangladeshi people, they got their independence because of the huge sacrifices by Bengali people and the leadership as well. The strong leadership stood by its demands for the rights of people of Bangladesh. And today, Bangladeshi people are blessed with an independent and free society led by a very strong leader who came very late as a prime minister after some 40 years of independence of Bangladesh. But as soon as she has come, she has brought change into the politics, into the system of Bangladesh, and Bangladesh is progressing so speedily towards a developed nation, a respectable nation, because we Pakistanis, we have lost our respect. Nobody respects Pakistanis. But Bangladeshi people are respected around the world, and it is because of the leadership. The biggest step of Sheikh Hasina Wajid Saiba is that she got rid of Islamic extremists, and she had courage to persecute and punish the war criminals of 1971, which nobody else could do. And that put Bangladesh on the right path of success and progress. And I wish all the best to my Bangladeshi brothers and sisters for their future. And this blessed country must progress to bring change in the demography of South Asian Muslims. And I thank all the organizers, especially my friend Priyojit Dev Sarkarji, for inviting me in this important and august event. And it's my honor to be part of this event. And thank you very much.